Good morning, everyone. Today we will learn about how to calculate depreciation according to original cost method. A company whose accounting year is the calendar year. Calendar year means कंपनी जो है वो अपने अकाउंट्स जो है वो स्टार्ट करती है फ्रॉम जनवरी एंड उनकी क्लोजिंग करती है 31 December every year. Purchased on 1 April 2017, machinery costing rupees 30,000, and in the same year it purchased further machinery on 1st October costing rupees 20,000, and on 1st July 2018 in next year costing rupees 10,000, and on 1st January 2019 one third of the machinery which was installed on 1st April जो उसने परचेज की थी कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000 become obsolete and was sold for rupees 3,000. So how the machinery account would appear in the books of the company, it being given that machinery was depreciated by fixed installment at 10% per annum. Machinery account, and the first entry will be machinery account debit to bank account on 1st April 2017 and on October 1st October 2017 to bank account at rupees 30,000 and to bank account at 20,000. एंड डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि उसने ये जो मशीनरी है उसको परचेज किया है April 1st, देन द एंड क्लोजिंग हो रही है अकाउंट्स की ऑन 31 December. इट मीन्स इन द ईयर 2017 वो जो मशीनरी है वो सिर्फ यूज़ हुई है फ्रॉम April to December. So depreciation of 9 months will be charged at the original cost, and the original cost of that machine was 30,000. 30,000, and the rate of depreciation is 10%, 10 upon 100 into 9 upon 12, 2250. And the depreciation on second machinery was for 3 months, October, November and December. The original cost of machinery was 20,000 into 10 upon 100 into 3 upon 12, and the depreciation is 500. And after charging depreciation, the balancing figure of first machinery is 30,000 minus 2,250, that is 27,750, and the balancing figure of the second machinery is 20,000 minus 500, 19,500. एंड नाउ ये जो बैलेंसेस हैं इनको हम ब्रोट डाउन करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर जनवरी 2018. Two balance brought down, and the balance of first machinery is 27,750, and the balance of second machinery is 19,500. And he purchased another machinery on July 1st to bank account, machinery account debit to bank, on the debit side of the machinery account to bank account 10,000. Now the depreciation on the first machinery, and depreciation is charged on original cost, and the original cost of first machinery was 30,000, and the original cost of the second machinery 20,000. एंड ये जो मशीनरी है इन द ईयर 2018 वो फुल ईयर यूज़ हुई है, तो देन डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट फॉर द फुल ईयर at the rate of 10%. So then the depreciation on first machinery is 3,000, and the second machinery is 2,000, and third machinery is purchased on July. तो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है उस पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बिफोर July 1st वो मशीनरी हमारे पास नहीं थी, वो यूज़ नहीं हुई थी, परचेज ही July 1st को हुई है, तो July 1st से लेकर जब तक अकाउंट क्लोज कर रही है कंपनी तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जो है उस पर हम कैलकुलेट करेंगे. एंड द ओरिजिनल कॉस्ट 10,000, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, and 6 month depreciation is 500. Now the balancing figure of all these three machineries were 27,750 minus 3,000, 24,750, the balancing figure of first machinery. एंड जो सेकंड मशीनरी है उसका बैलेंस जो है वो है December 31st 2018 में 19,500 माइनस 2,000, 17,500, एंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ थर्ड मशीनरी इज 10,000 माइनस 500, 9,500. एंड ये जो बैलेंसेस हैं इनको ब्रोट डाउन करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर 2019 जनवरी 1. द बैलेंस ऑफ फर्स्ट मशीनरी 24,750, सेकेंड 17,500, एंड थर्ड इज 9,500. नाउ ऑन January 1st उसने जो मशीनरी परचेज की थी ऑन 1st April
2017 उसको उसने सेल ऑफ किया है, बट जो उसने सेल ऑफ किया है वो ओनली वन थर्ड सेल किया है। तो देन ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी की थी 30,000 और उसका उसने वन थर्ड सेल किया है, मीन्स 10,000। तो मशीनरी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 20,000 एंड 10,000। और सेल ऑफ उसने कौन सा पार्ट किया है, दिस इज सेकेंड पार्ट। जो रिमेनिंग पार्ट है 20,000, इसको फुल ईयर यूज़ किया है, 2019 जनवरी टू दिसंबर। तो ये जो 20,000 की बैलेंसिंग मशीनरी है, ये जो इसकी बैलेंस फिगर है, इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, 2,000। और जो सेकंड मशीनरी थी हमारी, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो भी 20,000 थी, एंड द डेप्रिसिएशन जो है वो फुल ईयर का चार्ज होगा 2,000। एंड जो थर्ड मशीनरी हमने परचेज़ की थी, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, जो हमने जुलाई में परचेज़ की थी, 10,000। अब इन दिस ईयर 2019 हमने उसको फुल ईयर यूज़ किया है, जनवरी टू दिसंबर। तो द डेप्रिसिएशन ऑफ फुल ईयर विल बी चार्ज। तो depreciation is 1,000। एंड एक हमने मशीनरी को सेल भी किया है, और वो जो सेल किया है वो 10,000 मशीनरी, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 10,000 थी। बट इस पर डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो मशीनरी है हमने ईयर के बिगनिंग में ही, जनवरी फर्स्ट को ही हमने उसको सेल कर दिया। बस अब हमें इस पर कैलकुलेट करना है द प्रॉफिट एंड लॉस की। जो हमने मशीनरी सेल की है उस पर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वी नीड द बैलेंसिंग फ़िगर। हमें बैलेंसिंग फ़िगर यहाँ पर चाहिए। ये जो 24,750 है, इसमें ये 10,000 वाली मशीनरी भी इंक्लूड है। अब हम इसकी देखते हैं आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इसकी कितनी बैलेंसिंग फ़िगर होगी। हम 24,750 का वन थर्ड करते हैं, देन इज़ 8250। 8250 की मशीनरी है, सेल हुई है 3,000 में, सेलिंग प्राइस लेस है, और बैलेंसिंग फिगर इज 8,250, देन डिफरेंस इज 5250। इट इज़ अ लॉस, and the entry of loss is loss on sale of machinery account debit to machinery account, and it will be written on the recorded on the credit side of the machinery account by loss on sale of machinery 5250। नाउ अब 24,750 की मशीनरी थी, उसमें से 8250 की मशीनरी को हमने सोल्ड कर दिया। अब हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। 24,750 में 8250 की मशीनरी भी इंक्लूड थी, उसको हम डिडक्ट कर देंगे। आफ्टर डिडक्टिंग दैट मशीनरी, ये जो हमारे पास बैलेंस है दैट इज़ 16,500 बचा है फर्स्ट मशीनरी का, एंड उसमें से हमने डेप्रिसिएशन लेस किया 2,000, देन द बैलेंसिंग फिगर इज़ 14,500। एंड सेकंड मशीनरी का जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज़ 17,500 माइनस 2,000, 15,500, एंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ थर्ड मशीनरी इज 9,500 माइनस 1,000, दैट इज़ 8,500, एंड टोटल बैलेंसिंग फिगर इज़ 38,500। देन इसको हम ब्रोक डाउन करेंगे ऑन जनवरी 2020 to balance brought down 38,500।